Yeah, good to be with you all. बहुत खुशनुमा बात है कि आज शाम मैं आपके साथ हूँ. And now Greater Grace churches have a conference. Actually, it's an online conference. ग्रेटर ग्रेस जो चर्च है उसकी एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस चल रही है. Every year, this time of the year, we have European conference. We call it the Eurocon here in Europe. इस साल के इन महीनों में यूरोप में एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसको हम यूरोकॉन कहते हैं. So this week, it's all week. We have these online meetings, on YouTube. We put out messages on Facebook. और इस सारे हफ्ते में हम YouTube पर और Facebook पर अपनी जो मीटिंग्स है, कॉन्फ्रेंस है, वो चलाते हैं. And many of our pastors and leaders are preaching with fresh messages and just blessing the body of Christ. हमारे बहुत सारे जो लीडर हैं वो एक ताजा मसा के साथ प्रीचिंग करते हैं और खुदा के कलाम को शेयर करते हैं. So that's why Pastor Shibeli couldn't come today, because he's participating in Eurocon. In this conference. इसी वजह से पास्टर शुबैले जो है वो नहीं आ सके क्योंकि वो उस जगह पर खुदा के कलाम की मुनादी कर रहे हैं. So I will take today's message and I will continue on Elijah and Elisha's story. और मैं आज आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर करूंगा अलीशा और एलिया के बारे में. It's so important to come to the Word of God. ये बहुत जरूरी है कि हम खुदा के कलाम की तरफ आएं. And be hungry. और एक भूखे की तरह उसको ढूंढने की कोशिश करें. There's a promise in the Bible. God will feed the hungry. खुदा के कलाम में वादा किया गया है कि वो भूखों को आसूदा करता है. In the Old Testament, the children of Israel every morning they had to pick up manna. आपको पता है कि इस्राएल को हर रोज सुबह को जो मन था वो इकट्ठा करना पड़ता था. And they had enough, they had the fresh manna every morning, and they couldn't store it to eat tomorrow, that manna, right? उनके लिए हर रोज उन्हें सुबह को इकट्ठा करना पड़ता था, वो उसे अगले दिन के लिए रख नहीं सकते थे. This is a beautiful picture in the Bible of our walk with God. ये बहुत खूबसूरत एक तस्वीर है कि किस तरह से हम खुदा उनके साथ चलते हैं. It's a daily walk. ये हर रोज हमारा उसके साथ चलना है. It's not Sunday or only on Sunday. ये सिर्फ इतवार का दिन ही नहीं है कि हम खुदा के साथ चलें सिर्फ. But it's a personal walk. It's a daily walk. ये हमारी जाती उसके साथ एक रिश्ते को जाहिर करता है. And God feeds us. और खुदावंद हमें सुदा करता है और हर रोज हमें खिलाता है. And we receive from Him fresh food. We receive fresh from Him. और हम हर रोज ताजा मन जो है रिसीव करते हैं. So last class we talked about Elijah and Elisha. आखिरी क्लास जो थी लास्ट हमने वो देखी थी अलीशा और एलिया के बारे में. How Elisha would not leave Elijah but would go with him. किस तरह से अलीशा जो है वो उसको छोड़ना नहीं चाहता था. And also I told you that for 10 years Elisha was serving Elijah. He was with him, but the Bible doesn't mention Elisha. मैंने आपको बताया था कि 10 साल वो उसकी खिदमत करता रहा, लेकिन बाइबल इस खिदमत को बयान नहीं करती है. It's kind of like God is silent about what Elisha was doing with Elijah. ये एक तरह की खामोशी है कि खुदावंद क्या कर रहा था एलिया और एलिशा के दरमियान में. But when we think about it, Elisha was serving Elijah. He was learning from him. लेकिन जब हम सोचते हैं तो ये ऐसा है कि वो एलिया से कुछ ना कुछ सीख रहा होगा. He was like a shogird, right? In Urdu, shogird. वो उसके शागिर्द की तरह था. Yes. God wants us to learn. खुदावंद ये चाहता है कि हम सीखें एक शागिर्द की मानंद.
And he allows this kind of times in our lives when he prepares us for his service. और वो हमारी जिंदगी में इस तरह के हालात पैदा करता है कि हम उसकी खिदमत के लिए सीखें और सीखते जाएं। In 2 Kings chapter 2, दूसरी सलातीन उसके दूसरे बाब में several times Elijah says to Elisha, leave me, I have to go here, I have to go there, you stay here. कई बार एलिया उसे कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने यहाँ जाना है, वहां जाना है। And Elisha answers, as the Lord lives and as you yourself live, I will not leave you. और अलीशा से कहता है कि खुदावन की कसम मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। It's a beautiful picture. ये बड़ी जबरदस्त एक तस्वीर यहाँ पर नजर आती है। It also reminds me of Jacob, wrestling with the angel, right? ये बात मुझे याकूब की भी याद दिलाती है कि जब वो फरिश्ते के साथ कुश्ती लड़ रहा था। I will not let you go until you bless me. वो उसे कहता है कि मैं तुझे तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे बरकत ना दे। Jacob is alone. याकूब अकेला था। God meets him. और खुदावंद उसे मिलता है। Elijah is served by Elisha. They are kind of alone. एलिया जो है वो अलीशा के जरिए से उसकी खिदमत कर रहा है। अलीशा एलिया की खिदमत कर रहा है और वो अकेले हैं। Before Elijah met Elisha and God called Elisha to serve Elijah, before that, इससे पहले कि एलिया अलीशा को बुलाता, खुदावन ने उसे बता दिया था। Elijah was very lonely. एलिया बहुत तन्हा था, अकेला था। He was running for his life. वो अपनी जान को बचा रहा था। And he said to God, "Oh God, I'm the only one. I'm the only one." और वो खुदावन को कह रहा था कि खुदावन सिर्फ मैं ही बच निकला हूँ, सिर्फ मैं ही बच निकला हूँ और कोई जिंदा नहीं रहा। So in the Bible we see this loneliness in the servants, in the life of God's servants. हम देखते हैं यहाँ पर तन्हाई किस तरह से खुदा के खादम की जिंदगी में काम कर रही होती है। And I want to tell you, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, if you want to be a true follower of God, अगर आप यीशु मसीह के सच्चे पैरोकार बनना चाहते हैं, be prepared for such times of loneliness. तो अपने आप को तैयार करें कि आप कुछ वक्त तन्हाई में गुजार सकें। And that's when God really teaches us heart to heart. और यही वो वक्त होता है जब खुदावंद हमें दिल से दिल तक की बातें जो है हमें सिखाता है। Yeah. Elisha. अलीशा In 2 Kings 2, दूसरे बाब में, दूसरी सलातीन दूसरे बाब में, he knew that his master is leaving. वो ये जानता था कि उसका उस्ताद उससे रुखसत होने को है। And that's why he said, I will not leave you. इसलिए वो उससे कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। Now, I want you to think with me. मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग मेरे साथ मिलकर सोचिए। In a few Bible stories, in a few stories in the Bible, we see how God interrupts the laws of nature. हम ये देखते हैं कि किस तरह से बाइबल की कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जिसमें खुदावंद आता है और फितरत के अंदर मुदाखलत करता है। Hit the water and the water parts. वो पानियों को टकराता है और पानी दो टुकड़े हो जाता है। Who was the first in the Bible that hit the water and the waters parted? बाइबल में सबसे पहला बंदा कौन था जिसने पानी के दो टुकड़े किए थे? You can answer. मोसेस। Muqaddas Musa. Musa was the first one. Moses, right? Who yes. was the second? Elijah. Who was the second? Elijah. Anyone else? Umar.
Anyone? खुदा ने Who is that? दूसरा जो था वो एलिया था, Before फिर एलीशा ने। Elijah, before who was it? Before them, between Moses and Elijah and Elisha, who was it? There's one more. मूसा और एलिया से पहले, मूसा के बाद और एलिया से पहले भी किसी ने किया था, उसका नाम बताइए। खुदा ने जब फिजा के पानी को जुदा किया और जमीन के पानी No, nobody Pastor knows. Assad. Okay, What is Moses the also. question? What is the question? Please, can you repeat again? Yep. Sorry. Pastor Assad, you can repeat the question. जी, वो मूसा के बाद और एलिया से पहले वो कौन सा बंदा था जिसने पानी के 2 टुकड़े किए थे? Joshua? यशवा That's Yeshua. right. यशवा बुक That's ऑफ right. यशवा में। Yes. Yeah. So we see Moses. तो हम देखते हैं मूसा, We see Joshua. We see यशवा, Elijah हम देखते हैं एलिया को and Elisha. और अलीशा को। You know, this is like the supernatural that the river stops and the waters part. You know, this is supernatural. ये एक मफक्कल फितरत कुदरत थी कि पानी जो है वो फट गया और वो बीच में से जो है अलग-अलग हो गया। And the next one in the Bible will be Jesus. और उसके बाद फिर खुदावंद यीशु मसीह, Jesus says to the storm, "Be still," you know. और खुदावंद यीशु मसीह ने तूफान से कहा कि थम जा, रुक जा, And the storm stops. How और about this? तूफान रुक जाता है। Jesus is walking on water. ये कैसी बात है कि वो पानियों के ऊपर चल रहा था? The supernatural. ये मफक्कल फितरत कुदरत है उसकी। You know, it's an amazing, these miracles were amazing faith builders. ये ऐसे मौजज़ात हैं जो हमारे ईमान को तक़वियत देते हैं। If you would hear that somebody is walking on water in Lahore, wouldn't you go there to see, you know? अगर आपसे कोई कहे कि लाहौर में कोई पानी के ऊपर चल रहा है तो आप जल्दी से जाना पसंद करेंगे और इसको देखेंगे। But this is what we see. लेकिन हम यहाँ पर क्या देखते हैं? You know, God tests and also God confirms and encourages. खुदावंद अपने लोगों का इम्तिहान लेता है और उसके बाद फिर हमें तक़वियत देता है कि हम ऐसा कर सकें। So Elisha's call was not a carnal call. अलीशा की जो कॉल थी, बुलाहट थी, वो कोई आम बुलाहट नहीं थी। Some people say, "Oh, Elisha said, I want a double portion of Elijah's spirit." You know, that's a carnal, you know, like he wanted too much, you know. कई बार लोग कहते हैं कि अलीशा की ये ख्वाहिश थी कि वो अपने उस्ताद एलिया से दुगना मसा चाहे। ये एक आम सी बात लोग कहते हैं। But if you read the Bible, this is exactly what it says. Elisha asked for a double portion. लेकिन जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा of the power, number one. उसने उसकी बरकत का दुगना मसा चाहा, उसकी ताकत का, and number two, and the grace that was on Elijah. और खुदा का फजल जो एलिया पर था। Not only the power, सिर्फ ताकत ही नहीं मांगी थी उसने, but the grace of God. खुदा का फजल भी उसने साथ मांगा था। A true mark of a man of God, the grace of God. ये एक अच्छे इंसान की निशानी है कि वो खुदा उनके फजल में चलता है। Jesus was full of grace. खुदावंद यीशु मसीह फजल से भरा हुआ था, पुर फजल था। Yeah. Okay, let's look at few more pictures and then we jump into our class. You ready? आए कुछ और तस्वीरें भी देखते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी क्लास की तरफ आएंगे। Elijah, एलिया, we see the picture in the New Testament, John the Baptist as Elijah, right? हम ये सोचते हैं कि यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था वो एलिया था। Right? Elisha
लेकिन अलीशा जो था, the picture in the New Testament is Jesus. Elisha is like Jesus, right? अलीशा जो है वो यीशु मसीह की नुमाइंदगी करता है नए ऐदनामे में। Elisha's name, the name Elisha means अलीशा का जो नाम है इसका मतलब है God saves. खुदा बचाता है। Elijah's name एलिया का मतलब है that God is Yahweh. Yahweh is God. कि खुदावंद यहोवा खुदा है। Elijah एलिया revealed who God was through judgments. एलिया ये जाहिर करता है कि खुदा कौन है उनके ऊपर जब वो अदालत करता है आग नाजिल करके। Elisha revealed that God saves. अलीशा जो है वो ये जाहिर करता है कि खुदावंद बचाता है। Like Joshua. आमीन। जैसे कि जशवा करता है, Like Jesus, right? जैसे यीशु मसीह है। Yeah, Elisha, like Jesus, like Joshua. Okay, good. So what I want to talk to you about today is our calling. आज जो मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ वो हमारी बुलाहट के बारे में है। Every single one of you in this Zoom class today has a call from God. आप में से जो आज शाम इस जूम मीटिंग में है सबके लिए खुदा की कॉल है, बुलाहट है। Do you know what the call of God on your life is? क्या आप खुदा की बुलाहट को अपनी जिंदगी में जानते हैं? Because it's a great danger that many of us are just aimless Christians. We are just existing, but we don't have a call. We don't have an aim. हमारी जिंदगी में हम बहुत खतरे में हैं अगर हमें ये नहीं पता कि हमारी कॉल क्या है और हम इधर उधर भटक रहे हैं बस। Yeah. Or do you know your call and you serve in your call? और क्या आपके पास बुलाहट है, आप अपनी बुलाहट को जानते हैं और आप उस बुलाहट में रहते हुए उसको पूरा कर रहे हैं? Let me shock you. You ready? मैं आपको हैरान करने वाला हूँ, क्या आप तैयार हैं? So how about this? I don't know my call, मुझे अपनी बुलाहट के बारे में नहीं पता, but I do nothing, और मैं कुछ भी नहीं करता, but I'm learning, I'm enjoying God. लेकिन मैं खुदा को पसंद करता हूँ, उसके बारे में सीख रहा हूँ। What do you think about that? इसका क्या मतलब है? आप क्या सोचते हैं इस तरह की अगर हालत है आपकी तो? Because I think many times this is key. Sometimes we get so busy for God, do so many things for God. कई बार हम खुदा के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, ऊपर से ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, और हम बड़े बिजी नजर आ रहे होते हैं कि हम खिदमत कर रहे हैं। But we neglect our call because really God's call is to be with him and to get to know him. लेकिन हम जो असल बुलाहट का मतलब है वो खो देते हैं। असल मकसद ये है कि हम खुदा के साथ रहें और खुदावंद को जानें। You remember Martha and Mary? आपको मरियम और मार्था के बारे में मालूम होगा। What did Jesus say? खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? Like Jesus was like, who made the right decision, right? The one who किसने sat अच्छा at फैसला his किया? feet. वो जो उसके कदमों में बैठी रही। Martha, Martha, you're so busy. मार्था, मार्था, तुम इतनी मसरूफ हो। But you look at your sister. अपनी बहन की तरफ देखो, She's listening. वो खुदा का कलाम सुन रही है। She's doing nothing. वो कुछ भी नहीं कर रही। और Very interesting. बड़ी जबरदस्त बात है ये, गौर करें इस पर। We learn from him. हम इससे सीखते हैं, We come close to him. और हम उसके करीब चले जाते हैं। And sometimes we have this quiet time in our life. We are not so और busy
million things. हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बहुत बिजी नहीं होते, And this is what we see with Elijah and Elisha. और यही सारा मामला जो है एलिया और अलीशा के साथ वाकया होता है। Elijah brings judgment. एलिया जो है वो इंसाफ लाता है उनकी जिंदगी में, And he has a lot of alone times during his ministry. वो अपनी खिदमत में उसने बहुत सारा तन्हा वक्त जो है गुजारा है। Elisha, in contrast, he brings compassion. अलीशा जो है वो हमदर्दी लेकर आता है, He spends time with people. वो लोगों के साथ वक्त गुजारता है। But the characteristic of that time is this. लेकिन उस वक्त का जो किरदार था, जो सारी हालात थी, सूरत-ए-हाल थी, वो ये थी, The word of God was rare in those days. खुदावंद के कलाम का उन दिनों में कहत था, गिरा कदर था। So what does that mean? इसका क्या मतलब है? There was very little word of God. वहां पर खुदावंद का कलाम बहुत थोड़ा था। So when the word of God was spoken, जब खुदावंद का कलाम बोला जाता था, it was precious. वो बड़ा कीमती था। Today, आज the word of God is so cheap. खुदावंद का कलाम बहुत सस्ता है। You open Christian TV, there's the word of God. आप क्रिश्चियन चैनल खोलें, वहां पर आपको खुदावंद का कलाम सुनने को मिलेगा। You know, people search on the internet and they लोग choose what they listen to. There's word of God everywhere when you do the search. खुदावंद का कलाम इंटरनेट पर भरा पड़ा है, आप टकाटक उंगलियों से करते हैं और जो कुछ मर्जी निकाल कर सुन सकते हैं। Oh, I don't like his preaching. Okay, I'll try his preaching. Oh, I don't like his preaching. I'm going to try his preaching. मुझे इसका कलाम पसंद नहीं है, मैं उसका कलाम सुनूंगा। मुझे इसका कलाम पसंद नहीं है, मैं इसका सुन लेता हूँ कलाम। Comparing. Oh, he's not such a great man of God as he's a great man of God. You know, comparing and choosing. हम एक दूसरे का मुआजना कर रहे होते हैं, इसने कलाम अच्छा नहीं सुनाया, ये कलाम अच्छा सुनाता है, एक दूसरे का मुआजना करते हैं हम। If you are doing that, stop doing that. अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसको आज अभी रोक दीजिए। Be a faithful man or woman of God that is hungry for God and learn the Bible. एक ऐसी बेटी और बेटा बन जाइए जिसको वाकई खुदावंद के कलाम की भूख और प्यास है और उससे सीखिए। Because the word of God is precious. क्योंकि खुदावंद का कलाम बहुत कीमती है। And we want to be faithful to the call of God in our lives. और हम खुदावंद की बुलाहट में वफादार रहना चाहते हैं अपनी जिंदगियों में। So here is a shocking story. यहाँ पर एक बड़ी जबरदस्त कहानी मैं आपको बताता हूँ। So if you have your Bible, 2 Kings chapter 4. दूसरी सलातीन चौथा बाब From verse 8, we're going to read. 8वीं आयत से हम शुरू करेंगे। और एक रोज ऐसा हुआ कि अलीशा शोनीम को गया, वहां एक दौलतमंद औरत थी और उसने उसे रोटी खाने पर मजबूर किया, पर तो जब कभी वो उधर से गुजरता रोटी खाने के लिए वहीं चला जाता था। तो उसने अपने शौहर से कहा, देख मुझे मालूम होता है कि ये मर्द खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दस है। हम उसके लिए एक छोटी सी कोठरी दीवार पर बना दें और उसके लिए एक पलंग और मेज और चौकी और शमादान लगा दें, फिर जब कभी वो हमारे पास आए तो वहीं ठहरेगा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो until verse Also verse 11. I mean, let's read it So, okay. till So- verse. No problem. Keep reading till verse 15. सो एक दिन ऐसा हुआ कि वो उधर गया और उस कोठरी में जाकर वहीं सोया। फिर उसने अपने खादम जहाजी से कहा कि इस शोनीमी औरत को बुला ले। उसने उसे बुला लिया और वो उसके सामने खड़ी हुई। फिर उसने अपने खादम से कहा, तू उससे पूछ के तूने जो हमारे लिए इस कदर फिक्रें की हैं तो तेरे लिए क्या किया जाए। लुइस, आप
को होस्ट हैं तो आप प्लीज इनको म्यूट कीजिएगा, जो भी ओपन कर रहा है माइक, ठीक है? लुइस, प्लीज कंट्रोल मीटिंग। फिर उसने अपने खादम से कहा, तू उससे पूछ कि तूने जो हमारे लिए इस कदर फिक्रें की हैं, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तू चाहती है कि बादशाह से या फौज के सरदार से तेरी सिफारिश की जाए? उसने जवाब दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, इसके लिए क्या किया जाए? तब जेहाजी ने जवाब दिया कि वाकई उसके कोई फर्जंद नहीं और इसका शोहर बुढ़ा है। तब उसने कहा, उसे बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तो वो दरवाजे पर खड़ी हुई। तब उसने कहा, मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर तेरी गोद में बेटा होगा। वर्स 16। Okay, verse 16 also and 17. ओके। उसने कहा, नहीं ए मेरे मालिक, ए मर्दे खुदा, अपनी लोंडी से झूठ ना कह। सो वो औरत हामला हुई और जैसा आलिशा ने उससे कहा था, मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर उसके बेटा हुआ। वर्स 18। Okay, very good. So the story is this, there is this woman, यहाँ पर हमें ये स्टोरी सुनने को मिलती है कि एक औरत है and she's pretty smart. और वो बड़ी ज़हीन है। The word of God is rare in those days. खुदावंद का कलाम बड़ा गिरा कदर था, बड़ी मुश्किल से मिलता था उन दिनों में। And she recognizes this is a true man of God. Let's build a room for him. लेकिन ये औरत जान गई कि ये बंदा आम नहीं है, इसके लिए एक कोठरी तैयार की जाए, एक कमरा तैयार किया जाए। So she convinces her husband, let's do it. Let's make a room for him. उसने अपने खामन से बात की और उनके लिए एक रूम तैयार कर दिया। Now this is how the story starts. Pretty good, yeah? ये कैसी जबरदस्त स्टोरी यहाँ पर शुरू हो रही है। But then comes the need. लेकिन उसके बाद फिर जरूरत पेश आ गई उन्हें। She needs, they don't have a child. उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था। And, she will get a child. और फिर उन्हें बच्चा मिल गया। Yeah. Verse 17. 17वीं आयत। The woman conceived and bore a son when the appointed time has come, which Elisha has told her. सो वो औरत हामला हुई और जैसा अलीशा ने उससे कहा था, मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर उसके बेटा हुआ। Yes, that's great, right? Yes, ये बड़ी खुशी की बात है। The man of God said so. The boy has been born. Great. खुदा के खादम ने कहा था और लड़का पैदा हो चुका है। But then verse 18. फिर 18वीं आयत में, and the child grew. Now it happened one day that he went out to his father and to the reapers, and he said to his father, my head, my head. और जब वो लड़का बढ़ा तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने बाप के पास खेत काटने वालों में चला गया और उसने अपने बाप से कहा, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। Oh, let's continue. So he said to a servant, carry him to his mother. उसने अपने खादम से कहा, उसे उसकी माँ के पास ले जाओ। When he had taken him and brought him to his mother, he sat on her knees till noon, and then he died. जब उसने उसे लेकर उसकी माँ के पास पहुंचा दिया तो वो उसके घुटनों पर दोपहर तक बैठा रहा, उसके बाद मर गया। Wow, what a story. ये कैसी जबरदस्त स्टोरी है। Verse 21. 21वीं आयत। And she went up and laid him on the bed of the man of God. तब उसकी माँ ने ऊपर जाकर उसे मर्दे खुदा के पलंग पर लटा दिया। Shut the door and went out. और दरवाजा बंद करके बाहर गई। Then she sent to her husband and said, please send me one of the young men and one of the donkeys that I may run to the man of God and bring और him उसने अपने back. शौहर से पुकार कर कहा, जल्दी जवानों में से एक को और गधों में से एक को मेरे लिए भेज दे ताकि मैं मर्दे खुदा के पास दौड़ जाऊं और फिर लौट आऊं। Look at her faith. उसके ईमान की तरफ देखिए। She's not telling her husband that the boy died.
वो अपने खामन को ये नहीं बता रही कि उसका बेटा मर गया है। She's asking for a donkey. She's asking to go for a trip and to bring the man of God here. वो अपने खामन से दरखास्त करती है कि एक गधा उन्हें दे दिया जाए ताकि वो खुदावंद के खादम को लेकर आए। Verse 23, the husband gets suspicious, right? और उसका जो खामन था वो शक में पड़ गया था। He said, why are you going today? It is neither new moon nor Sabbath. उसने कहा आज तो उसके पास क्यों जाना चाहती है, आज ना तो नया चांद है ना सबत। And the woman says, it is well, don't worry. उसने जवाब दिया कि अच्छा ही होगा। So basically the story goes like that. She goes and finds the man of God. असल में स्टोरी कुछ इस तरह चलती है कि वो जाती है और खुदावंद के खादम को ढूंढती है। In verse 26, और 26वीं आयत में, please run to meet her and say to her, it is well with you, it is well with your husband, it is well with your child. अब जरा उसके इस्तकबाल को दौड़ जा और उससे पूछ क्या तू खैरियत से है, तेरा शौहर खैरियत से है, बच्चा खैरियत से है। And here's again a shocking answer. It is well. This is what she said. और यहाँ पर एक और हैरानकुन बात है, वो औरत क्या जवाब देती है, उसको कहती है उसने जवाब दिया खैरियत है। Verse 27. 27वीं आयत, और जब वो उस पहाड़ पर मर्द खुदा के पास आई तो उसके Yeah, now when she came to the man of God at the hill, she caught him by the feet. But Gehazi come near to push her away. Romis, can you translate? Pastor Assad disappeared. Where is Pastor Assad? Are you busy? Richard, let Romis translate. Let's try Romis translate if he's with us. Oh, Pastor Assad is back. Oh, Pastor Assad is back. Actually, I'm Okay, using good. my phone to join. And somebody keep calling me, so that's why I didn't join. No problem. Okay, just continue. So the picture is she grabs the prophet's legs वो and the Gehazi, the वो- servant of वो नबी को पकड़ लेती है और उसके पाँव को पकड़ लेती है, but the man of God says, लेकिन खुदा का बंदा कहता है leave her alone, उसे अकेला छोड़ दो, for her soul is in deep distress, and the Lord has hidden it from me and has not told me. और खुदावन ने मुझसे ये छुपाया है और खुदावन ने मुझे नहीं बताया, उसे छोड़ दो, वो परेशान है। And listen to this. This is, as I said, Elijah and Elisha, they had amazing ministries, and we can see how their ministry is so different. हम एलिया की और अलीशा की खिदमत को देख सकते हैं कि उनकी खिदमत किस तरह से मुख्तलिफ है एक दूसरे से। So watch this. Verse 28. 28वीं आयत को देखिए। She said to him, did I ask वो- a son, O my Lord? और वो कहने लगी क्या मैंने अपने मालिक से बेटे का सवाल किया था? Did I not say to you, do not deceive me? क्या मैंने ना कहा था कि मुझे धोखा ना दे? And the prophet understood immediately. और खुदा का खादम जल्दी से समझ जाता है कि क्या हुआ है। Verse 29. Then he said to Gehazi, get yourself ready, take my staff in your hand and be on your way. तब उसने जहाजी से कहा कमर बांध और मेरा आसा हाथ में लेकर अपनी राह ले। If you meet anyone, do not greet him. If anyone greets you, do not answer him, but lay my staff on the face of the child. अगर कोई तुझे राह में मिले तो उसे सलाम ना करना, और अगर कोई तुझे सलाम करे तो जवाब ना देना, और मेरा आसा उस लड़के के मुंह पर रख देना। And verse 30, and the mother of the child said, as the Lord lives, and as your soul lives, I will not leave you. So उस he लड़के की arose माँ ने कहा and खुदावन followed. की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी।
again, what is this? Wow. So, you know, we saw this before. I will not leave you. And she followed, you know. वो कहती है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, लेकिन बाद में उसके साथ चले जाती है। And he was, you know, they were going together, right? और फिर वो इकट्ठे जाते हैं। 31. Now Gehazi went on ahead of them and laid the staff on the face of the child. और जहाजी ने उनसे पहले आकर आसा को उसके लड़के के मुंह पर रखा, पर ना तो कुछ आवाज हुई ना सुनना। Yeah, but there was neither voice nor hearing. Therefore, he went back to meet him and told him, saying, the child has not awakened. इसलिए वो उससे मिलने को लौटा और उसे बताया कि लड़का नहीं जागा। So 32, when Elisha came into the house, there was the child laying dead on his bed. जब एलीशा उस घर में आया तो देखो वो लड़का मरा हुआ उस पलंग पर पड़ा था। He went in, therefore shut the door behind the two of them and prayed to the Lord. सो वो अकेला अंदर गया और दरवाजा बंद करके खुदा से दुआ की। He went up and lay on the child and put his mouth on his mouth, his eyes on his eyes, and his hands on his hands. और ऊपर चढ़कर उस बच्चे पर लेट गया और उसके मुंह पर अपना मुंह और उसकी आंखों पर अपनी आंखें और उसके हाथों पर अपने हाथ रख लिए और उसके ऊपर पसर गया। He stretched himself upon the child. उसने अपने आप को उसके ऊपर ऐसे जो है अपनी बॉडी उसके ऊपर रख दी। And the flesh of the child became warm. तब उस बच्चे का जिस्म गर्म होने लगा। Verse 35. 35वीं आयत, फिर वो उठकर He returned and walked back and forth in the house and again went up and stretched himself on him. And the child sneezed 7 times. फिर वो उठकर उस घर में एक बार टहला, ऊपर चढ़कर उस बच्चे के ऊपर पसर गया और वो बच्चा 7 बार छींका और बच्चे ने आंखें खोल दी। And the child opened his eyes. तब उसने और बच्चे ने अपनी आंखें खोल दी। And he called Gehazi and said, call this Shunammite woman. तब उसने जहाजी को बुलाकर उससे उस शूनेमी औरत को बुला ले। And when she came in, और जब वो अंदर आई, he said, pick up your son. उसने उससे कहा कि अपने बेटे को उठा ले। So she went in, fell at his feet and bowed to the ground. Then she picked up her son and went out. तब वो अंदर जाकर उसके कदमों पर गिरी और जमीन पर सरनगू हो गई, फिर अपने बेटे को उठाकर बाहर चले गई। You know, this is an amazing story. ये बड़ी जबरदस्त कहानी है। Because it shows us the deadness and the heaviness of our soul sometimes. ये हमारी जिंदगी की जो मुर्दा हालत होती है और जो हम रूखे हुए होते हैं उसको शो करती है। This is such a beautiful picture of Jesus Christ. ये बड़ी जबरदस्त एक तस्वीर मिलती है हमें यीशु मसीह की। This is a picture of the incarnation. ये उसके मुजस्सम होकर आने की एक तस्वीर हमें नजर आती है। You know, big Elisha comes down to the little boy, you know. अलीशा जो है वो छोटे बच्चे की खातिर नीचे उतर आता है। You know, it's a picture of big, you know, like when we think of God, we think how big he is. A big God comes down to man. जब हम खुदा के बारे में सोचते हैं तो हमारा ये मानना है कि खुदा बहुत बुलंदो बाला है, लेकिन वो नीचे उतर आया इस छोटे बच्चे की खातिर। So he lays on the body of the boy and to warm him up, right? वो अपने उस बच्चे के ऊपर लेट जाता है और उसका जिस्म जो है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। He laid on him. This is a picture, this is a symbol of the cross of Jesus Christ. ये एक संबल है कि किस तरह से उसको अजियत दी जाएगी। You know, he lays on him. वो उस पर लेट जाता है। Then he gets up
और फिर वो खड़ा हो जाता है, He stays in the room. वो उसी कमरे में रहता है, He does not bring down the boy to the mother, वो लड़के को उसकी माँ के पास नहीं लेकर आता, but he stays upstairs. वो ऊपर ही रहता है कमरे में। This symbolizes the resurrection. ये क़यामत को शो करती है, जो मुर्दों में से जी उठने को है। The boy sneezes 7 times. लड़के ने 7 नीचे मारी। You know, this signifies purification. ये जाहिर करता है कि खुदावन ने हमें पाक कर दिया है। Apshoo, apshoo, apshoo. अच्छुम 7 अच्छुम times. अच्छुम, The 7 old नीचे, goes out. 7 The old goes out, then the new comes in. 7 बार जब वो छींकता है तो इसका मतलब है कि पुराना जो चीजें थी वो निकल गई और नई सांस उसके अंदर गई। 7 times indicates the work of God. 7 बार छींकना जो है ये खुदावन के काम को जाहिर करता है। If you look at the next chapter, we have a man, you know, a army official called Naaman. अगर And the- आप इसके अगले चैप्टर को देखते हैं तो उसमें नमान कोड़ी के बारे में हमें मिलता है, जो एक फौजी आदमी है। And Elisha tells him, go and dip yourself in the Jordan River 7 times. और यहाँ पर भी अलीशा उसको कहता है कि जाओ और दरिया यरदन में 7 गोते मारो। 7 7 indicates the work of God in our lives. 7 का अदद जो है हमारी जिंदगी में खुदा के कामों को जाहिर करता है। And Naaman gets clean from leprosy because the work of God purifies. और नुमान अपने कोढ़ से पाक हो गया क्योंकि खुदावंद जो है उसका काम जो है हमें पाक कर देता है चीजों से। This boy is a miracle of God, God's gift to this woman. ये लड़का एक खुदावंद की तरफ से एक तोहफा था जो इस औरत को दिया गया था। But this woman needs to learn about God's work. लेकिन इस औरत को सीखने की जरूरत थी कि किस तरह से खुदावंद काम करता है। The same way we learn about God's work through reading God's word. हम खुदावंद के बारे में जानना शुरू करते हैं जब हम उसके पाक कलाम को पढ़ना शुरू करते हैं। And we see in the Old Testament, the New Testament, and we see in the New Testament how the Old Testament is true. हम नया और पुराना अहदनामा देखते हैं, फिर किस तरह से नया अहदनामा जो है वो पुराने अहदनामे के बारे में बताता है। And when we see Elisha, और फिर हम अलीशा की जिंदगी को देखते हैं, how he is like Jesus, you know, like he's such a beautiful picture of Jesus. वो किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह की एक तस्वीर पेश करता है। Our faith is strengthened. हमारी ताकत और हमारा ईमान। And we say, I want to understand. और हम ये कहते हैं कि मैं ये समझना चाहता हूँ। God, I want to understand. उससे कही गया है, खुदावंद मैं समझना चाहता हूँ तेरे कलाम को। I want to be your disciple. मैं तेरा शागिर्द बनना चाहता हूँ। I don't want to be just a volunteer. मैं फ्री में काम करने वाला नहीं बनना चाहता, But I want to learn to serve. लेकिन मैं ये सीखना चाहता हूँ कि किस तरह तेरी खिदमत की जाए। Elisha served Elijah 10 years. अलीशा ने एलिया की खिदमत की 10 साल। And he asked for a double portion from God. और उसने उससे दुगना मसा चाहा खुदा से। If you look in the Bible, अगर आप खुदावंद के कलाम में से देखें, and if you count the miracles of Elijah, अगर आप एलिया के मोजज़ात को देखें, we count 14 miracles. तो हम 14 मोजज़ात देखते हैं। You have pen and paper. Let's make some notes. You ready? अगर आपके पास पेन और पेपर है तो नोट्स बनाते जाइए। आप तैयार हैं? So the miracles of Elijah. एलिया के मोजज़ात। 1 Kings 17 verse 1. फर्स्ट किंग पहली सलातीन 17 verse 1. 17 वर्स 1।
causing the rain to cease for 3.5 years. बारिश को रोक देना जो था 3 साल के लिए. See, 3.5 is half of 7, right? 3.5 साल जो है वो 7 साल का आधा हिस्सा बनते हैं. This has a significance. इसकी भी एक अपनी अहमियत है. So there was no rain. बारिश नहीं हुई उन 3.5 सालों में. The second miracle दूसरा मौजज़ा in verse 4, चौथी आयत में, also in chapter 17, verse 4. इसी तरह चैप्टर 17 वर्ष 4. He was fed by ravens. और वो कौवों के जरिए से खाना खाता रहा. Do you know anyone who was fed by ravens? क्या आपको याद है कि किसी ने इस तरह से खाना खाया हो? Do you know that ravens are considered as unclean birds? आपको पता है कि कौवे जो हैं वो नापाक परिंदे तस्वर किए जाते हैं. And God could use an unclean bird to feed his own prophet? और खुदा नापाक परिंदों को इस्तेमाल कर सकता है कि उसके मुकद्दस नबी को खाना खिलाएं. So that's the second, being fed by ravens. Number 3, ये दूसरा था. तीसरा मौजज़ा in also in chapter 17, verse 14, 17 की 14वीं आयत में, miracle of the barrel of meal and the oil, you know. उसका तेल और कुप्पी वाला जो मौजज़ा था. Okay, number 4, चौथा, resurrection of the widow's son. और verse उस बेवा 22वीं आयत में उस बेवा औरत का बेटा जिंदा हो जाता है, जहां पर Verse 22. 22वीं आयत में. Okay, then the number 5, पांचवा मौजज़ा, calling of fire from heaven on the altar. आसमान से आग नाजिल करना मज़बहा पर. 1 Kings 18:38. 18वें बाब की 38 आयत. The number 6, 6वां नंबर, 6वां मौजज़ा, the rain, causing it to rain, बारिश आती है. in verse 45. वर्ष 45 में. Okay, 7th miracle, 7वां मौजज़ा, actually that's a prophecy that असल में ये एक नबूवत थी जो अखीब के बारे में थी. that Ahab's sons will be destroyed. कि अखीब के बेटे जो हैं वो मारे जाएंगे. First Kings Sorry. 21:22. 1 Kings chapter 21 verse 22. पहली सलातीन 21वां बाब वर्ष 22. Number 8, 8वां मौजज़ा, this is also a prophecy that Jezebel would be eaten by dogs. ये था कि जेज़ेबेल जो थी वो कुत्ते उसको खा जाएंगे, उसका This खून is in चाटेंगे. verse 23. ये 23वीं आयत में है. Okay. 9th miracle, 9वां चैप्टर मौजज़ा, chapter chapter 21. 21 verse 23, Yes. 22. Okay, Number next 9. Prophecy 9वां that- मौजज़ा, this is Yes. also a prophecy that Ahaziah would die of his illness. ये भी एक प्रोफेसी थी कि अखजिया जो था वो अपनी बीमारी के सबब से मर जाएगा. 2 Kings chapter 1 verse 4. 2 King chapter 1 verse 4. 4. पहला बाब चौथी आयत. 2 Kings. दूसरी सलातीन. Okay, number 10, 10वां मौजज़ा, the calling fire from heaven upon the first 50 soldiers. खुदावन की आग आसमान से नाजिल होती है पहले 50 सिपाहियों पर. 2 Kings chapter 1 verse 10.
पहला बाब 10वीं आयत। 11, 11वां मौजज़ा, calling fire from heaven upon the second 50 soldiers. खुदावन की आग दूसरी बार नाजिल होती है दूसरे 50 के ग्रुप पर। 2 Kings 1:12. पहले की 12वीं आयत। The 12th miracle, ये 12 जो मौजज़ात हैं, parting the Jordan. He took his, coat or robe and boom, he hit the river and the और Jordan River parted. और जो 12वां मौजज़ा था वो दरिया यरदन के 2 टुकड़े करना था। उसने अपने पटके से अपनी चादर से उसको मारा और वो 2 टुकड़े हो गया। 2 Kings 2:8. दूसरा 8वीं बाब, दूसरा चैप्टर 8वीं आयत। Number 13. 13वां मौजज़ा, This is also a prophecy that Elisha should have a double portion of his spirit. अलीशा जो है उसके पास दुगना मसा होगा। Yeah, this ये is भी एक प्रोफेट। 2 Kings 2:10. ये दूसरे बाब की 10वीं आयत में आपको मिलेगी। And the 14th miracle, और 14वां मौजज़ा एलिया का, being caught up in heaven with the whirlwind. वो आसमान पर उठा लिया गया आतिशी रथों में। 2 Kings chapter 2 verse 11. दूसरा बाब 11वीं आयत। Now, the reason I gave you the verses, मैंने इसलिए आपको ये सारे हवाले लिखवाए हैं because you say, how come a prophecy is a miracle? But if you read the verses, if you think about it, these are all miracles of Elijah. अगर आप ये सोचते हैं कि प्रोफेसी जो है नबूवत करना ये किस तरह से मौजज़ा हो सकती है, तो अगर आप इन सारे हवालों को पढ़ेंगे तो तब आपको समझ आएगी। So Elijah, many chapters deal with Elijah, but we have 14 miracles of him in the Bible. बहुत सारे बाब हैं जो एलिया की खिदमत के बारे में बताते हैं, लेकिन 14 जो बड़े मौजज़े हैं वो ये हैं उसके सिर्फ। It's easy to count them. ये बहुत आसान है इनको गिनना। But then when it comes to Elisha, लेकिन जब ये अलीशा पर बात आती है, how much is 14 times 2? 14 का दुगना कितना होता है? That's how many miracles 14 times 2. Elisha did. ये इतने मौजज़े उसने किए थे। 28, right? Okay. Yes. So, is it 28? Yes, 28. Because he's claimed double portion. Exactly. And it's interesting that when we go through the life of Elisha, we see similar miracles, और जब हम अलीशा की जिंदगी पर जाते हैं तो हमें सेम मौजज़ात नजर आते हैं। The first miracle of Elisha was अलीशा का जो पहला मौजज़ा था 2 Kings 2:14. दूसरे बाब की 14वीं आयत में है। Yeah, he parts the Jordan River. उसने भी दरिया यरदन के 2 हिस्से कर दिए। Yeah, 2 Kings 2:21. 21 आयत, दूसरे बाब की 21 आयत। He heals the waters. उसने पानी को अच्छा कर दिया। Okay. So can I give you homework? क्या मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ? So Yes. We are ready. Find the 28 miracles in the lifetime of Elisha. Okay. मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ कि अलीशा की जिंदगी में जो 28 मौजज़ात थे वो आपने ढूंढ कर लाने हैं।
So the first miracle तो पहला मौजज़ा is the parting of Jordan River, right? दरियाई यरदन के दो हिस्से करना था. And the last miracle, I want to give you the last one. I like the last one a lot. मैं पहला और आखिरी मौजज़ा आपको देना चाहता हूँ. मुझे आखिरी मौजज़ा बहुत पसंद है. When I was in Bible school, When it is happen. back in the day, I'm still in Bible school. Right now, I'm in Bible school. Yes. जब I had मैं the- बाइबल स्कूल में था, I had the same homework. मुझे भी सेम होमवर्क मिला था ऐसा ही करने को. जब मैं बाइबल स्कूल में था, यानी पास्टर जोसेफ, And I only found 27 और सिर्फ मुझे 27 ही मिले थे. because Elisha died and there was only 27 miracles. अलीशा जब मर गया था तब 28 पूरे हुए थे. And I was like, तब 27 पूरे हुए थे. the Bible is not जब- true. जब वो मर गया तब 27 पूरे हुए थे. फिर मैंने देखा वो बाइबल जो है थोड़ी सी इसमें सही बात नहीं है. Only ऐसा नहीं होना चाहिए था. 27. Only 27. सिर्फ 27 मौजज़े हुए हैं. ये तो दुगना नहीं बनता. Then I read the Bible, he dies. और फिर जब वो मर जाता है, Then and there then is a I read a few more verses and I say, oh, there's one more. और मैंने फिर जब उससे आगे पढ़ा तो फिर मैंने देखा कि वो एक और मौजज़ा है. Because they bury a man on his bones. That's what 2 Kings 13:21 says. They put a man's body on the prophet's bones. He's already दूसरी dead. सलातीन 13वें बाब की 31वीं आयत बताती है कि जब उन्होंने उसकी कब्र में किसी और बंदे को डाल दिया तो वो मुर्दा उसकी हड्डियों के साथ लगने के सबब से जिंदा हो गया. And that man is resurrected, right? And that's the और वो 28th miracle. और ये उसका 28वां मौजज़ा था. So yeah, that's the homework. ये आपके लिए होमवर्क है कि आपने 28 पूरे करके आने हैं. वाओ. Yeah, don't be afraid to ask for a double portion of God's Spirit on you. कभी भी खुदा से मत झिझकिए और डरें उसके दुगना मसा मांगने के लिए. We have an amazing prophet, and then another prophet, his student follows him, and he has a double portion on him. एलिया एक अजीम नबी था और उसके बाद अलीशा जो नबी मुकर्रर होता है, जो नबी बनता है, अनॉइंटिंग उस पर आती है, वो डबल थी उससे. So, okay. So Let's. We have any more time, or this is it? it's up to you. We can have 10 minutes, 10 to 15 minutes. Okay. Yeah, 5 more minutes. I want to also comment on one more miracle. मैं एक और मौजज़ा काउंट करना चाहता हूँ. Yeah, in 2 Kings, दूसरी सलातीन chapter 6, from verse 6वां 1, बाब verse पहली 1 to आयत से 7. पहली से 7वीं आयत तक. You want me to read? No. Just Okay. write down the verses. This is a आप time ये मौजज़ा लिख लें. ये ऐसा वक्त था where there was a spiritual decline. यहाँ पर के स्पिरिचुअल जो म्यार है वो सामने आता है. Elijah is running for his life from Ahab. एलिजा, एलिया जो था वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहा था अखीब से. We see that in the past, right? How he runs. हमने पहले भी देखा है कि वो किस तरह से उससे भागा. Now Elisha, अभी is on- अलीशा, there are a lot of prophets, उस दौर में बहुत सारे नबी थे and there are the sons of the prophets. और नबियों के बेटे भी थे. And Elisha is working with the sons of the prophets. और अलीशा नबियों के बेटों के साथ काम करता था. We see some revival, और हम एक इनकलाब जो है वो देखते हैं. but till this time,
लेकिन इस वक्त तक there was a spiritual decline. यहाँ पर एक रूहानी जो था वो एक रुकावट थी. So the story here in 2 Kings 6 is the story of the ex-head, the ex-head. You know, the यहाँ पर ex-head. 6वें बाब में कुल्हाड़े की आपको एक स्टोरी मिलती है जिससे लकड़ियां काटते हैं कुल्हाड़ा. The ex-head is made of iron. कुल्हाड़े का जो लोहे वाला हिस्सा होता है आपको पता है कि वो लोहे से बनता है. Proverbs 27:17. Proverbs Proverbs 7 27:17. इमसाल 27वें बाब की 17वीं आयत. Iron sharpens iron. लोहा लोहे को तेज करता है. Now, I want to ask you, what does this ex-head represent? ये लोहे का जो कुल्हाड़ा है उसका जो सर है ये किस चीज को जाहिर करता है? Read the story, आप ये स्टोरी पढ़िएगा. but I tell you the answer. मैं आपको जवाब बता देता हूँ. Jesus is represented by this ex-head. It's a picture of Jesus. खुदावंद यीशु मसीह इस लकड़ी के जो कुल्हाड़ा था उसका जो आगे सर था लोहे को उसको जाहिर करता था. You know, I said in Proverbs we read iron sharpens iron. मैंने कहा है कि मिसाल की किताब में लिखा है कि लोहा लोहे को तेज करता है. Sharpening. वो तेज करता है उसको. You know, we have character when we are sharpened by God. हमारे मुख्तलिफ किरदार हो सकते हैं जब खुदावंद हमें तेज करता है, धारीदार बनाता है. God is able to achieve what is humanly impossible. खुदावंद वो कुछ करने की कुदरत रखता है जो इंसान से नहीं हो सकता. Like what happens with the ex-head? आपको पता है कि क्या होता है यहाँ पर उस कुल्हाड़े के साथ? Boom, falls into the river. वो मारता है और वो दरिया में गिर जाता है. Iron. लोहा. Go down. और वो डूब जाता है. Oh, what happened? My ex, master. और वो कहते हैं ओ मेरा कुल्हाड़ा गुम हो गया ऐ मालिक. So, this is one of the miracles. ये एक मौजज़ा है. You know, this might have been, you know, I was thinking, who are these guys? मैं ये सोचता हूँ कि ये कौन लोग थे, कैसे ये कर लेते थे ये सब Which कुछ. is this river? ये दरिया कौन सा था? I think it is the Jordan River. मैं ये सोचता हूँ कि ये दरिया यरदन था. And Elisha is leading these students. और अलीशा जो था वो शागिर्दों को सिखा रहा था. Like we are led by Jesus Christ in this evil world. और जैसे कि हम खुदावंद यीशु मसीह हमें लीड कर रहा है इस तरीकी के दौर में. Yeah, he goes with these students. वो शागिर्दों के साथ जाता है. You know, these students want this prophet to be with them because they want the word of God. और शागिर्द ये चाहते हैं कि ये नबी उनके साथ रहे क्योंकि वो खुदावंद के कलाम को सीखना चाहते थे. So they are using this axe to build. वो इस कुल्हाड़े को इस्तेमाल करते थे ताकि तमीर कर सकें. But bad luck, the axe is lost. लेकिन बदकिस्मती से उनका कुल्हाड़ा जो है वो डूब जाता है. When I first read this story, I was saying, you know, why is this in the Bible? जब मैंने पहली बार ये स्टोरी पढ़ी तो मैंने कहा और सोचा कि ये बाइबल में क्यों लिखी गई है. But I think this is why. लेकिन इसकी रीजन ये थी जो मैं आपको बताने लगा हूं अभी. You know, bad times, bad things, hard times shake us, you know. बुरा वक्त और बुरी बातें हमें हिला के रख देती हैं. Sometimes God uses very bad circumstances to bring out something very good. कई बार खुदावंद बुरे हालात में हमें डाल देता है ताकि वो बुरे हालातों में से अच्छी चीजें निकाल ले. So the ex-head is in the river. God will turn this to be something very good.
वो कुल्हाड़ा जो है वो नीचे पानी में गिर जाता है और खुदावंद अब उसको तब्दील कर देता है और निकाल लेता है And किसी अच्छी चीज में। every detail is important in this story. एक एक बात हमारे लिए जरूरी है इस कहानी में से सीखने के लिए। The prophet cuts off a little stick. नबी जो है वो एक छोटी सी छड़ी लेता है और वो उसको काटता है And he throws it into the water. और वो दरिया में फेंक देता है। This stick has a significance. ये जो स्टिक उसने फेंकी है इसकी भी एक अहमियत है, पहचान है। This is why we take the Lord's Supper. इसी वजह से हम इशाया रुबानी जो है वो लेते हैं। There is life, there is spiritual significance behind it. इसके पीछे रूहानी मकासद हैं कुछ। This is why we anoint with oil when we pray for the sick. इसीलिए हम बीमारों को तेल के साथ मसा करते हैं जब हम उनके लिए दुआ करते हैं। The spiritual significance behind it. इसके रूहानी कुछ मकसद निकलते हैं। Also I was thinking, like these sons of the prophets, they are using this old axe, like they don't take care of the axe. कई बार मैं ये भी सोचता हूँ कि ये नबियों के जो बेटे थे ये पुराना कुल्हाड़ा ही इस्तेमाल कर रहे थे और वो उसकी देखभाल भी नहीं कर रहे थे। We can say it was a little bit rusty, maybe, rusty. और हम ये सोच सकते हैं कि उसको थोड़ा सा जंग लगा होगा। Not only rusty, but the sons of the prophet says it was borrowed. It was borrowed. ना सिर्फ उसे जंग लगा हुआ था, वो तो लिया भी उन्होंने दारा था। In Pakistan, I know this borrowing is very big culture of borrowing. Oh, this brother has something that you can borrow for something, right? मुझे पता है पाकिस्तान में ये आम रिवाज है कि अगर किसी भाई बहन के पास कुछ हो तो हम कहते हैं इन्हें को मांग लो। And when you borrow something and it breaks when you borrowed it and you're using it, you feel so bad, right? और अगर आपने किसी से कोई उधारी चीज ली हो, अगर वो टूट जाए तो आप कितनी शर्मिंदगी महसूस करते हैं फिर। Because you have to fix it if it breaks, right? क्योंकि आपको उसे ठीक करके वापस करना है अगर वो आपसे टूटी है तो। If you borrowed something and you cannot give it back, then you will be a debtor. अगर आपने किसी से कुछ उधार लिया और उसको वापस नहीं कर सकते तो आप पर कर्जा चढ़ गया है। And someone has to pay that debt. और किसी को आपकी खातिर वो अदा करना पड़ेगा। So this is what happened with this axe. It fell into the river. और ये होता है इस कुल्हाड़े के साथ कि वो जब दरिया में गिर जाती है। And these sons of prophets are like, oh, it was borrowed. Oh, what are we gonna do now? और वो नबियों के बेटे कहते हैं, ओ ये तो उधार का लिया हुआ था, अब हम क्या करेंगे? There is need for redemption. यहाँ पर मुखलसी की जरूरत थी। So the prophet says, तो नबी यहाँ पर कहता है I'm gonna help you. कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। So again, what do we see? We see a type of Christ here. दोबारा हमें इस जगह पर भी यीशु मसीह की एक अक्कासी नजर आती है। How he is redeeming. वो किस तरह से उनको बचाता है इस प्रॉब्लम से। The axe, the prophet throws the wood on, the stick on the river and the iron starts floating. What a miracle. ये कैसा मौजज़ा है कि नबी जो है वो छड़ी को उस दरिया में फेंकता है और वो जो कुल्हाड़ा था लोहा कभी तैरता नहीं है और वो लोहा तैरता हुआ ऊपर आ जाता है। Yeah. And this is also against the laws of nature. ये कुदरत के कानून के खिलाफ है कि लोहा कभी तैरता नहीं है। God is a great God. खुदावंद अजीम खुदा है। And we see Jesus Christ and his works all over Elisha's miracles. हम खुदावंद यीशु मसीह की तमाम वो कुदरत को अलीशा की जिंदगी में देख सकते हैं। Yeah. Amen. आमीन।
So the homework the Lord. is, write out the 28 miracles of So Elisha. okay? आप सबका ये होमवर्क है कि आपने अलीशा नबी के जो 28 मोजज़ात हैं उनको लिख कर लाना है आयत बा आयत. But don't do it because I said so. लेकिन आपने ये समझ कर नहीं करना कि पास्टर जोसेफ ने कहा था. Do this homework because you want to do it. आप ये समझ कर करिएगा क्योंकि आपने इसमें से सीखना है और आप इसको करना चाहते हैं And enjoy it. और इसको इसका लुत्फ उठाइएगा. I remember when I did it. मुझे याद है जब मैंने ऐसा किया था. I couldn't go to sleep till I finished it. मैं वो सारी रात सोया नहीं था जब तक मैंने 28 मोजज़े ढूंढ नहीं लिए थे. I wanted to be so much like Elisha. और मैं अलीशा की मानद बनना चाहता था. I don't know. Crazy. मुझे नहीं. Let's pray. आए हम दुआ करें. Yes, Father, be thankful for the students today. Be thankful that your word is pure. You speak and you feed us. You help us to think with you. Teach us to number our days. Teach us to look to you for help in our times of need. Thank you for each and every Bible school, each and everyone that is hungry for your word. Feed us, strengthen us in our faith. Help us to be active in your call and recognize what you want us to do. Maybe sometimes the most important thing is that we spend time with you, personal time. Give strength and wisdom to my brothers and sisters to spend time with you. In Jesus' name, amen. Amen.